welcome to Elections on My Plate, where our journey is starting in battleground Gujarat, here in Rajkot, in the heart of Saurashtra. The BJP has been a dominant party across Saurashtra and Gujarat now for 25 years. 2017, though, was different. The Congress won 29 out of the 48 seats here, riding on the back of the Patidar or Patel agitation. That agitation, though, has fizzled out, and there are new objective realities on the ground. The BJP has changed almost half of its candidates. The Congress seems to be focusing more this time on the Bharat Jodo Yatra. But there is a new X factor in the AAP as a potential disruptor. How will all this play out? Will the BJP complete a historic and record-breaking 7th consecutive win? Let's find out the mood across Saurashtra on Elections on My Plate. Now, like many other parts of Gujarat, Rajkot too wakes up early and I'm told sleeps early. But we have a long day ahead and a potentially calorie-infested day, which is why time for a morning walk. Let's go. How are you, Chief? Woo! 57 and going strong. Hi. Oh, so nice to see you, sir. Nice, thank you. How come you're in Rajkot? I'm in Rajkot because elections are in the air. Oh, yes. What's going to happen in the elections? Sir, don't ask me. Why? I'm a BJP fan anyway. So are you voting today for BJP or Mr. Modi or Bhupendra Patel? Not for Bhupendra Patel, but for Modi's leadership. But for Modi's leadership. क्या होगा election? What will happen in the elections? Definitely BJP. Definitely BJP. Huh? There is no option. I don't think so. Huh? Chief? बीजेपी 120 प्लस 120 plus. मोदी जी ने बहुत कुछ किया है और एकदम साफ सुथरा काम है। कांग्रेस के साथ तो या तो आम आदमी पार्टी के साथ उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। तो कैसे किसी को कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन ही नहीं है। इतने सालों से बीजेपी है कोई टफ कंपटीशन तो रहेगी। इस बार है टफ कंपटीशन। सबको दोनों पक्षों। कौन है मेन दो कौन है? भाजपा हाँ। कांग्रेस आम आदमी पार्टी सो है तो मेन कंपटीशन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस. What's going to happen in the elections? You never know. It's BJP all the way. It's BJP all the way. I What? think we are pretty satisfied. You're satisfied? What are you happy with? What is the best thing that has happened? Even before Narendra Modi became a PM, he Huh. was very good with Gujarat. He brought Gujarat into the world, like in the map. So we are like completely Satisfied, okay with yeah. it. You're satisfied? क्या fitness कर रहे थे? क्या करते हो? रनिंग Running? You need to lose little bit more weight, नहीं? हाँ? आप यहाँ राजकोट में अब क्या करें? रोटली शाक रोज खाते हो लगता है. हाँ, एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा. आपकी फेवरेट स्वीट क्या है? स्वीट सब फेवरेट ही है. स्वीट सब फेवरेट. कोई भी स्वीट दे दो. हाँ, श्रीखंड से लेके बासुंदी से गुलाब जामुन. आप थोड़ा उनको कंट्रोल करो. नहीं कर पाते. खाने दो. हाँ? स्वीट पे इंटरव्यू लेना है या इलेक्शन पे? अच्छा तो ये बोलो, हाँ, बेस्ट कौन है इलेक्शन में? क्या होगा? वैसे तो मोदी जी ही बेस्ट है ना. मोदी जी है. पर इलेक्शन ये तो स्टेट का इलेक्शन है. वो मोदी जी तो दिल्ली में है. हाँ वो मगर सामने कोई बैठा ही नहीं है. सामने दिख रहा है आपको कोई? आम आदमी पार्टी कांग्रेस. हाँ आम आदमी पार्टी अभी आई है. लग रहा है कुछ ना कुछ नया होगा. धीरे से. वोट किसको दोगे? મોદી સાહેબ કાલ આકે કે ગઈ ને क्या? કે તમે ઘરે વડીલોને કહેજો કે મોદીભાઈ આવ્યા છે ને મારા નમસ્કાર છે તો પછી પતી ગયું ને. अरे पर मोदी जी तो दिल्ली में है. यहाँ तो यहाँ भूपेंद्र पटेल है गांधीनगर में. सरकार किसकी है? મોદી સાહેબ की मोदी साहब की सरकार है. तो मोदी वोट साहब। इज फॉर मोदी ओनली. ओनली मोदी. क्या होगा इलेक्शन में? बस वही बीजेपी आएगी, कंफर्म ही है. कंफर्म है. कंफर्म 100%. ये राजकोट में बेटिंग बहुत चलती है. तो कितने सीटें दे रहे हैं? नहीं 140. 140. 140. आप आएगी. अरे वेरी गुड. वन ऑल्टरनेट व्यू. क्योंकि अभी चेंज की जरूरत है गुजरात को. चेंज की जरूरत है गुजरात में. आपको भी लगता है चेंज? और कांग्रेस? कांग्रेस भी आएगी.
कांग्रेस आएगी पर ओछी कम संख्या होगी। तो ये नंबर 2 के बैटल में कौन आगे रहेगा, आप या कांग्रेस? अभी तो आप लग रहा है। अभी आप लग रहा है। मैडम हाउ आर यू? इन सब लोगों में आप सबसे फिट हैं, है ना? नो गाठिया नो जलेबी। नो गाठिया नो जलेबी। देखो दिस इज द डिफरेंस। आप लोग मेन, ऑल द मेन हियर आर ओनली हैविंग जलेबी गाठिया। ओनली ट्वाइस अ ईयर समटाइम्स, और वो भी थोड़ा सा ही पोर्शन। अच्छा यार टाइगर ये अब बात करिए, मैं तो हाँ, आप सेल्फी ले रही हैं? हाँ। सेल्फी कर रही है। मोदी जी भी सेल्फी बहुत लेते हैं। आप बताइए क्या होगा इलेक्शन में? साहब ये गुजरात है, यहाँ किसी को फ्री में कुछ नहीं चाहिए। हाँ साहब यहाँ पर तो लोग देने वाले हैं, लेने वाले फ्री में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा? हाँ, ये तो सेल्फ डिपेंडेंट और हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन है गुजराती। तो कौन इलेक्शन में क्या होगा इसका मतलब इलेक्शन में बीजेपी आएगी। एक बार गुजरात में आओ तो कोलेस्ट्रॉल छोड़ दो। मेरा भी जन्म अहमदाबाद में हुआ है, तो मेरे पेट में जलेबी है कहीं ना कहीं। आप जुम्बा करते हैं? क्या है दिखाइए। कैसे ऐसे सारा जुम्बा ऐसे કેટલા કરો છો यार? કેટલા કરો છો? ટીવીમાં જોયા છે 50 50 ये भी नहीं। कैन आई ट्राई? अरे बाप रे, देखो आज इतना जलेबी गाठिया अभी खाना है तो ये सब करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। ओके, exercise done. It's time for a Gujarati breakfast. Jalebi Gathia awaits. કેમ છો દીપક ભાઈ? એકદમ મજામાં. How are you, Karan? Good to see you. Karan ભાઈ કેમ છો? Fine, thank you. કેમ છો તમે? Look at this table. I'm with 3 old journalist friends from Rajkot. Early morning, जलेबी गाठिया पापड़ा, आप लोग, हाँ ढोकला, आप लोग कैसे करते? कैसे? कोलेस्ट्रॉल का क्या होगा? What will? Why every early morning this kind of? I think this is must for every Saurashtrians. And if you go in every village, every city, you will find this. This is the main breakfast of every Saurashtrian. No cholesterol if you have this. No cholesterol? Yes, આમાં cholesterol નથી. This is not cholesterol. very hygienic because આ એકદમ ફ્રેશ આવે છે, ગરમ આવે છે, એટલે આમાં કોઈ જમ્સ નથી લાગતા. There are no germs. ચણાનો લોટ હોય છે, બેસન. So it gives us protein. It gives you protein, Yes. દીપક ભાઈ? અને અમે છે ને રાજીવભાઈ, અમે આને આઠે પહોરની ઉજાણી કહીએ છીએ. Which means? બસ આઠે પ્રહર. क्या ने? सुबह अगर 3 बजे भी आप खा लो, अर्ली मॉर्निंग, हाँ। 5 बजे भी खा लो, लंच भी अगर नहीं करते और स्कीप करते ये खा लो तो ये एक बात मैं ऐड हाँ। करूं, राजकोट और सौराष्ट्र के जो लोग हैं ना राजदीप, हाँ। वो खाने पीने के शौकीन, इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि सौराष्ट्रियन जो है वो दिल के भी समंदर है और पेट से भी समंदर है। मैं देख रहा हूँ दीपक भाई, पेट तो मजबूत है आपका। जलेबी, ढोकला, गाठिया, पापड़ा, इसे हाँ। संभारा बोलते हैं. Sambara, these are of course the snacks that make Gujarat what it is. Too good. और लीलो मरचा. अरे बाप रे, ये मिर्ची के साथ टू गुड. और ऐसा कॉम्बिनेशन आप कहीं नहीं पाएंगे. देखिए ये नमकीन है, हाँ ये मीठा है, हाँ. और ये जो मिर्च है वो तीखा है. तीनों टेस्ट एक प्लेट. इट्स अ फैमिली. You know, you'll have a coalition, it appears on breakfast, but no coalition in your politics. In your politics. Gujarat is a state where whoever wins usually wins with a good margin. It's a clear majority. Okay, so let's talk politics. What's going to happen, Deepak? क्या होने वाला है इस बार? मुझे लगता है राजदीप, गुजरात की जब हम बात करते हैं तो यहाँ तो बीजेपी एडवांटेज है, बीजेपी का घर है. But what is the reason? Why is this the BJP's fortress? It almost seems to me as if this is a battle for who will be number 2 here. Aam Aadmi Party or Congress, number 1 is decided. Is that true? What is it? Why is BJP so strong? The thing is that there are so many things over here, but it seems that there is no opposition. There is no opposition में unity नहीं है. वो लोग वहाँ पे आंतरिक इतना वो उनके अंदर मतभेद है. So people have also known that what is happening, and BJP being here since 1998. Clear majority, one after the other elections, they have been just winning here. Since 95, in fact. 95 and 95 to 98. Yeah, that's right. So the basic thing you are telling me is BJP has got a solid 50% vote, 48 to 50%, and the opposition vote gets divided, Yes. right? Yeah. पर इसमें कहीं ना कहीं हम लोग जब आकलन करते हैं तो जैसे ये हिंदू स्टेट बन गया, हिंदुत्व का गढ़ बन गया. नॉट जस्ट बीजेपी,
हिंदुत्व एंड मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल राजदीप, ये बात बिल्कुल सही है। 2002 के बाद हिंदुत्व की ऐसी लहर यहाँ पे छाई हुई है। मैं सिर्फ असेंबली की बात नहीं करता हूँ, पंचायत इलेक्शन हो, कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो, लोकसभा के इलेक्शन हो, और लोकसभा में जो लास्ट नरेंद्र भाई जीते 26 से 26 सीट, और उसमें मार्जिन तो आप देखो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख मार्जिन से सारे कैंडिडेट जीते। तो यहाँ पे बीजेपी घर घर में ऐसे घुसा हुआ है कि लोग जब वोटिंग करने जाते हैं, दिमाग में कोई सवाल होता है, लेकिन जब वोटिंग करने के बाद कमल पे ही बटन दबता है। नो, बट 2002 is 20 years ago. That's right, but that is absolutely right. But if you go and see that year after year and term after term, BJP has kind of progressed because it's not just the fame, but it's also the hard work of the Karyakartas and the way they have gone, reached door to door. The network over here in this state of BJP, I don't think it is anywhere else. Yes, Jalan bhai. I do agree with Karan. Hindutva is also a point, strong point, but you ask that why BJP is strong. The first reason is performance. They have performed. So you see a Morbi tragedy. Is that an issue in this election or not? It is an incident, and it is a bad incident. But it is not the entire face of Gujarat. Face of Gujarat. No, the fact is it is not entire parameter of Gujarat. But it seems when it comes to elections, only Modi kaka. राजदीप डेवलपमेंट्स की हम बात करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट्स के मुद्दे के ऊपर हिंदुत्व हावी हो जाता है, नरेंद्र मोदी पिक्चर में आ जाते हैं। आप बात समझो, कोई भी चुनाव मैं ये नहीं मानता हूँ कि डेवलपमेंट के मुद्दे पे लड़ा जाता है और जीता जाता है। यहाँ पे हिंदुत्व मुद्दा आता है। बहुत सारा हुआ, जैसे पेपर लीक हुआ, मोरबी ट्रेजेडी हुई, उससे पहले लट्ठाकांड हुआ, बहुत सारे चीजें हुई, लेकिन लोग जब पोलिंग नजदीक आता है भूल जाते, सिर्फ उसको एक ही चेहरा दिखने को मिलता है, वो है नरेंद्र भाई। और नरेंद्र भाई के आने के बाद गुजरात में बीजेपी इतनी स्ट्रॉन्ग, पहले बीजेपी स्ट्रॉन्ग थी इधर, लेकिन नरेंद्र भाई ने उसको और मजबूत कर दिया है। आई वांट टू आस्क यू दैट इज दिस अबाउट मिस्टर मोदी और इज इट अबाउट द बीजेपी और हिंदुत्व? नहीं, मेरा भी और एक दीपक भाई के साथ आई एड सम मोर पॉइंट्स दैट कि अगर आप ये सब की बात करें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लोग बड़े परेशान थे, ये कोविड के टाइम भी लोग बड़े परेशान थे, लेकिन इसके दौरान भी, कोविड के दौरान भी इलेक्शंस हुए, तो वो इलेक्शंस में 90% सीट्स बीजेपी को लोकल सिविक पोल्स में मिला। व्हाई वाज इट? देयर वाज नो हिंदुत्व, देयर वाज नो मोदी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट व्हेन इट कम्स टू विधानसभा और व्हेन इट कम्स टू लोकसभा, ऑफ कोर्स मोदी पिक्चर इज ऑलवेज देयर, बट मेरा इसमें माने there's a failure of opposition. To be very honest, failure. Okay, you are saying failure of opposition, Jalan bhai. This time there is Aam Aadmi Party. They are fighting this election. Congress used to be very strong in Gujarat. जो मुद्दे दीपक भाई ने कहे 1, 2, 3, 4 जो भी, वो या तो मीडिया कहती है या तो थोड़े बहुत जो है वो चर्चा में रहते, लेकिन ये जो पूरी जो ड्यूटी, जो पूरा फर्ज है ओपोजिशन का, पेपर लीक होते हैं या ये पुल टूटा, ये हुआ, अब ये पुल टूटा, आम आदमी पार्टी में से कौन वहां पर गया? बैठ जाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं गया। माई पॉइंट इज दैट लास्ट टाइम 2017 Patel agitation was here and Congress got more seats than BJP, 29 out of 48. Does that mean in a way now that agitation तो खत्म हो गया, हार्दिक भाई तो एजिटेशन वाले चले गए बीजेपी में? हाँ। और 2017 में आप देखो, सिर्फ पाटीदार आंदोलन नहीं था, ओबीसी का भी आंदोलन चल रहा था। बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठा हो गए जिसकी वजह से एडवांटेज कांग्रेस को मिला। कांग्रेस नजदीक आई, 77 पे पहुंची, लेकिन जो जादुई आंकड़ा होता है, जो फिगर्स होते हैं, उसमें कांग्रेस कभी पहुंच नहीं पाई। लेट मी आस्क यू अ कंट्रोवर्शियल थिंग, हिंदू मुस्लिम, व्हेन हेमंत बिस्वा शर्मा इन असम गोज एंड सेज दैट देयर विल बी मोर आफ्ताब्स that will come up in the villages of Kutch if you don't vote for BJP, कहीं ना कहीं मुस्लिम को तो दुश्मन तो बना है 2002 के बाद। मेरे हिसाब से हिंदुत्व का मुद्दा यहाँ पे है, और हिंदुत्व के मुद्दे ने बीजेपी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दिया है। राजनीति सो इट्स हिंदुत्व प्लस विकास प्लस मोदी। मोदी तो बहुत आगे है। नरेंद्र मोदी को देख के आप अगर चौराहे पे जाके किसी को भी पूछोगे राजदीप के गुजरात के सीएम कौन है, छोटे आदमी को कदाच नाम भी पता नहीं होगा, वो नरेंद्र मोदी को देख के वोट करते हैं। You are saying people won't know Bhupendra Patel, they are voting for Mr. Modi because he is more popular. So that he is the prime minister. इसके बाद में काम पे कैसे जाते हो आप लोग? इसके बाद ही होता है ना, इसके बाद ही तो काम होता है। This is the morning charging thing. This is the morning charger. इसके बाद ही काम होता है। यार ये तो when in Gujarat, do as the Gujaratis do. As I said, I am born in Ahmedabad. So I have a particular fascination for the sweets of Gujarat. મારી ગુજરાતી કેવી છે?
अरे આપની ગુજરાતી તો એક ગુજરાતી ને શર્મા એવી ગુજરાતી અરે શું વાત કરો છો નરેન્દ્રભાઈ સાથે તમારો એક ગુજરાતીમાં ઇન્ટરવ્યુ થવો જોઈએ. નરેન્દ્રભાઈ તૈયાર ગુજરાતીમાં ઇન્ટરવ્યુ કરશું. ચાલો, that for another day, but it's time to hit the road. Before that, enjoy. Okay, we've come here to the Saurashtra University campus in Rajkot because remember there's an entire generation that has grown up in Gujarat and has only seen the BJP. In recent years, though, there has been student unrest and disaffection, especially over the issue of paper leaks. At least 20 papers have reportedly been leaked in Gujarat over the last 7 years, causing disaffection among thousands of students. It's a virus spreading across the country. But the question is, do such issues really matter at election time? Let's find out. कैसे हो? केम छो? हाँ मजामा? हाँ फॉर्म में? कोई एग्जाम है कि नहीं? एग्जाम है कि नहीं? खत्म हो गए. ये पेपर लीक का क्या मसला है गुजरात में? इतने पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? गुजरात में पिछले 7 सालों से 20 से ज्यादा बार गवर्नमेंट भर्ती के पेपर लीक हो चुके हैं और हाल ही में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के बीकॉम और बीबीए सेमेस्टर 5 का 1 महीने पहले ही पर्चा लीक हो चुका है. स्टूडेंट यहाँ पर 7 साल से 20 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं. तो आप लोगों ने कोई एजिटेशन किया, आंदोलन किया है कि नहीं? हमने प्रोटेस्ट किया पर ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है और जो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का पर्चा लीक हुआ है वो बीजेपी वालों ने ही किया है. इसीलिए आज तक कोई पुलिस फरियाद भी नहीं की है. पिछले 15 दिनों से छात्र संगठन यहाँ पर लड़ाई लड़ रहा है सिर्फ पुलिस फरियाद करने के लिए. फिर भी कोई पुलिस फरियाद करने के लिए रेडी नहीं है. आप चाहते हैं कि इश्यू बने? आपको लगता है इश्यू बनेगा या लोगों के सामने और बहुत इश्यूज हैं? बहुत इश्यू है, ये भी बहुत बड़ा इश्यू है क्योंकि जो रोजगार है वो भी मुद्दा है और जो हमारी जो प्राइवेट जो है यानी कि जो अभी सब मोंघवारी है तो वो भी इश्यू है और रोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि रोजगार मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है. यंग जनरेशन बहुत है हमारे भारत देश में तो वो भी एक नहीं. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ 25 ईयर्स से बीजेपी है यहाँ. आप खुश है कि नहीं बीजेपी सरकार से? बीजेपी सरकार ने जो नई नई योजनाएं बनाई है उससे हम खुश है. लेकिन जब लोग बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं टॉपर होते हैं, उनको तो पेपर लीक हो गया तो उनका तो नुकसान ही होगा ना. जो लास्ट बेंच पे बैठते हैं वो लोग पेपर फूट जाए उनको जलसा आ जाएगा. उनको जलसा होता है तो बैक बेंचर को जलसा होता है, टॉपर फंस जाता है. गुजरात में लेकिन ये तो मानना पड़ेगा 25 सालों से मोदी जी कहते हैं हमने विकास किया है गुजरात का. हुआ है कि नहीं विकास? गुजरात का विकास ऐसे देखा जाए तो हुआ है लेकिन शिक्षण के क्षेत्र में उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए. तो कहाँ विकास हुआ है? पहले तो जो सरकार ने ये नई नई योजनाएं बनाई है उसमें तो सरकार के कुछ कदम आगे तो रोड, इरिगेशन, इसमें अच्छा रोड तो अच्छे बने हैं. अच्छे बने, आपको मानना पड़ेगा. रोड अच्छे बनेगा. तो आपका प्रॉब्लम है कि शिक्षा में उतना नहीं हुआ. जो मेन प्रश्न है शिक्षा में वो है पेपर का लीक. पेपर जो ये लीक कौन कर रहा है? ये पेपर लीक कर कौन रहा है? इसके पीछे कौन है? किसका हाथ है? सर इसमें ऐसी बात है कि हमारे जो शिक्षण मंत्री है जीतूभाई वाघानी तो पहले प्रदेश प्रमुख थे, तब उनके ही लड़के को चिट्ठियों के साथ पकड़ा गया था चोरी करते हुए और आज उसे 2 साल बाद शिक्षण मंत्री बनाया जाता है. तो इसमें आप ही सोचिए कि कौन जिम्मेदार हो सकता है. लेकिन आपको मानना पड़ेगा पिछले 25 साल से बीजेपी की सरकार यहाँ रही है तो कुछ तो किया होगा कि यंग लोग अभी भी वोट करते हैं बीजेपी के लिए कि नहीं? ये तो आप मानते हैं कि नहीं? मैं उससे अलग मानता हूँ. आज भी यहाँ पर 5000 भर्ती के लिए 27 लाख बेरोजगार युवा भर्ती के फॉर्म फिलअप करते हैं. मान लो आज भी एक भी स्टूडेंट को भरोसा नहीं है कि कोई भी भर्ती के एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका पेपर लीक नहीं हो सकता. ठीक है, 20 बार पेपर लीक हुआ. ईडी है, सीबीआई है, जहाँ जांच नहीं करनी होती है वहाँ जांच करते हैं और जहाँ जांच करनी होती है वहाँ पर जांच नहीं करते. और आप जो तो आप कह रहे हैं ईडी सीबीआई ने पेपर लीक की जांच करनी चाहिए? उसको ही जांच करनी चाहिए. और मैं तो बोलता हूँ कि इसका कनेक्शन मिनिस्टर और सीएम तक निकलेगा, ये दावे के साथ हम बोल सकते हैं. चुनाव में है आम आदमी पार्टी जो कहती है हम दिल्ली एजुकेशन मॉडल लाएंगे. कांग्रेस है जो कह रही है हम
भ्रष्टाचार बंद करेंगे, और बीजेपी जो कह रही है हमें वोट दो हम विकास करेंगे, किसकी तरफ जाओगे? चुनाव के पहले तो दावे बहुत होते, सभी पार्टियों के दावे बहुत होते, चुनाव के बाद तो कोई देखने भी नहीं आता सर। कोई नहीं आता यहाँ, कोई देखने नहीं आता। अच्छा, मुस्लिम करके ही वो लोग वोट खींचना चाहते। हाँ, हिंदू मुस्लिम का डिबेट करते ही वो लोग वोट को अपनी तरफ, हिंदुओं के वोट को, मुस्लिमों के वोट को अपनी तरफ की। तो आप कह रहे हैं यंगर स्टूडेंट्स की कोई सुनता ही नहीं है सर। तो आप नहीं चाहते ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति? मुस्लिम का राजनीति नहीं चाहते आप बस एजुकेशन और असली मुद्दे। एजुकेशन और एजुकेशन। चलो, इंडिया का फ्यूचर ही एजुकेशन है ना। चलो, वेरी वेल स्पोकन यंग मैन। इंडिया फ्यूचर इज एजुकेशन। हम देखेंगे, विल सी इफ दिस बिकम्स एन इलेक्शन इश्यू एट ऑल। फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू ट्रैवल टू मोरबी, where there's another issue that we want to look at. Okay, now before I leave Rajkot for Morbi, which is about 60 kilometers away, there's one pit stop I have to make, because you can't come to Rajkot and not go to Rasik Bhai Chevda Wala for my favorite Gujarati Chevda. Come with me. Boss, क्या है? सब है कि नहीं? चूड़ा छे कि नहीं? बिल्कुल है सर। अरे ऑल द वैरायटीज ऑफ चूड़ा। ये कौन सी आपकी? ग्रीन चटनी। अरे मेरी फेवरेट। और वेफर? ये नेट वाली जाली वाली वेफर है। जाली वाली वेफर, ग्रीन चटनी, स्पेशल चूड़ा। स्पेशल चूड़ा। आप लोग स्नैक्स बहुत खाते हो। स्नैक्स, गुजराती स्नैक्स। क्या करोगे विदाउट स्नैक्स इन गुजरात? इसको क्या चटनी में ना? चटनी में डाल के મસ્ત, બહુ ગમ્યું. મૌજ. શું કહો છો તમે ગુજરાતીમાં? ફર્સ્ટ ક્લાસ માટે. બહુ સારું લાગ્યું. બહુ સારું લાગ્યું. इलेक्शन में क्या होगा? जो देश की बात करेंगे वही आगे बढ़ेंगे। जो देश की बात करेंगे वही आगे करेंगे। वेरी गुड. राजू भाई has now brought me not just ढोकला but some patties also. क्या है स्पेशलिटी इस पैटीज का? पैटीज में क्रिस्पी और उसका मसाला और चटनी उसका कॉम्बाइन है। Too good. Huh? Namkeen. Let me try. Patties. Gujarati style. Too good. No one makes namkeen as well as the Gujaratis. Enjoy the patties. I'm off to Morbi. You're watching Elections of Patties on my plate. Maja. October 30th, 2022 is a day the people of Morbi town will not easily forget. It was a Sunday, a few days after Gujarati New Year, and a large crowd had gathered to celebrate at the Jhulta Pool, or the swinging bridge, the century-old bridge, which is iconic here in this town. The bridge collapsed and at least 135 people died. The bridge collapse has exposed administrative failures and municipal misgovernance. The issue may not resonate across Gujarat, but in election season, the bridge collapse is a shadow that looms large. How will it actually play out on the ground? Let's try and find out. Come with me. કેમ છો કૃષ્ણકાંતભાઈ? કેમ છો કૃષ્ણકાંતભાઈ? द मंदिर नेक्स्ट टू द ब्रिज, ही इज द पुजारी. आप बताइए उस दिन क्या हुआ? सर ये झूलता पुल जो है करीब 6:30 बजे करीब गिरा था. हाँ. ठीक है. 6:30 को. हाँ. तो यहाँ पे हमारे आजू बाजू में रहने वाले सब लोग, हाँ. पीछे एक मकरानी वास है, ये दरबागढ़ एरिया है, खत्रीवाड़ एरिया है, मोरबी 2 है, मतलब जितने लोग हैं मोरबी में रहने वाले, मतलब अगल बगल में जिसको जो मतलब कामगिरी में वो लोग कर सकते थे वो सब लोग उन लोगों ने किया है. और बचाव कार्य में
बहुत से लोगों को बचाया गया है शुरू में। तो आपके सब लोग वहाँ चले गए और लोगों को बचाया आप लोगों ने? जी सर, मैं था, ये मेरा दोस्त है, ये भी था साथ में। जब ये हुआ तब मैं इसी दरवाजे पे बैठा था। अच्छा, इसी दरवाजे पे आप बैठे थे? तो आप लोग सब गए वहाँ और लोगों को बचाया कि नहीं? हाँ, सबको बचाए। और कितने लोगों को बचाया आपने? वो तो सर मालूम नहीं। 100-200 लोगों को तो अपने हाथों से हमने निकाला था, सबने, मतलब हाथों से निकाला, यहाँ पे लेके आते थे, एम्बुलेंस में डालते थे। मोरबी शहर के सभी लोगों ने मदद की, लोगों की बहुत से लोगों ने, सब लोगों ने मदद की। कुछ लोग पानी में कूद गए कि नहीं? बहुत से लोग, हमारे यहाँ पे जो पुराने एमएलए थे, हाँ, कांति भाई अमरोतिया, हाँ, वो खुद यहाँ पे बचाव कामगिरी में लगे थे। 2-4 पुलिस वाले जिनको पता चला था, वो सब लोग यहाँ पे कामगिरी में लगे हुए थे। बहुत से लोगों को बचाया हुआ है सर। लेकिन किसको आप जिम्मेदार किसको ठहराते जो हुआ? सर अब जिम्मेदार तो क्या बोले, गलती तो सबकी है, एक की गलती नहीं है। बहुत से लोग, अब जब पता है कि इतनी सारी भीड़ हो चुकी है, ठीक है, तो उसमें जाने की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं थी। हम भी यहाँ पे रह रहे इतने टाइम से, ठीक है, तो हम साल में एक बार जाते और कम भीड़ होती है तब जाते। पर डर था कभी कि ये ब्रिज इस तरह से कोलैप्स हो सकता है? लोगों में डर था कि नहीं? लोगों में डर नहीं था, लेकिन हम लोगों को तो डर था। जब ये घटना हुई तब किसी ने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है? सब सवाल ही नहीं था। नहीं, अभी क्या है कि चुनाव आता है, इलेक्शन। हाँ ना, चुनाव नहीं, ये मुझे बताओ, इसका कोई चुनाव पे असर होगा? नहीं होगा, कुछ असर ही नहीं होगा ना। और चुनाव की बात ही मत करो। क्यों? चुनाव का प्रश्न नहीं था, मानवता का था। मानवता का था, चुनाव का कोई प्रश्न नहीं। चुनाव से हमको कोई लेना देना ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार था उसको कुछ ना कुछ सजा होनी चाहिए। उसको सजा होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, किसको? ये जो ओरेवा वगैरह है, कंपनी वाले कोई भी हो जाए। हाँ, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं इसका कोई चुनाव पे असर नहीं होगा? चुनाव पे आप लोग वोट देंगे? इसमें डालने का ही नहीं है ना सर। नहीं तो चुनाव, ये थोड़े बीजेपी वाले ने, कांग्रेस वाले ने, आम आदमी वाले ने, किसी ने किया है? ये तो अकस्मात है। अच्छा, ये आखिरी बताइए, अभी तो चुनाव, अभी तो ये हो गया घटना। आपने कहा हिंदू मुसलमान एक थे, अभी भी रहेंगे क्या एक मोरबी में? ऐसा रहेगा तो रहेंगे। हाँ, ऐसा रहेगा ना। हाँ, ये यहाँ पे जो काम किया ऐसा रहेगा ना, सब एक ही रहेंगे। आपका नाम? જીતુભાઈ। અને તમારું નામ? જાડેજા જુવાનસિંહ। તમારું? મહેશભાઈ। મહેશભાઈ। તમારું નામ? કેબીસી બચ્ચન। તમારું નામ કેબીસી બચ્ચન? હા, કેબીસી બચ્ચન શું? હા, નયો નામ છે તમારો? અમિતાભનો ફેન છો તમે? There are many grieving families here in Morbi even now. I've come to one such home where at least 4 people lost their lives. Jagdish bhai, કેમ છો? જગદીશ ભાઈ એ મારો બાબો મોટા. અચ્છા. મહેશ ભાઈ મારો પુત્ર હતો અને એનો બાબો યુવરાજ અને આ ભાઈનો બાબો गिरीश. तो कितने 3 लोग मर गए आपके फैमिली के? आपका बेटा? मेरा बेटा, उसका आपका भाई और उनका भी बेटा? मेरा बेटा કેટલો વર્ષનો હતો તમારો બેટો? कितने साल का था आपका बेटा? वो 10 साल का, गिरीश का, जगदीश भाई का बाबा 10 साल का था। और आपका? और मेरा महेश भाई का लड़का 12 साल का। 26 तारीख को गुजराती न्यू ईयर था, साल मुबारक था। साल मुबारक। उस दिन उन्होंने चालू किया और ज्यादा लोग आने दिए उधर। हाँ, जाने दिया। दोनों साइड में टिकट काटने लगा, उधर से न सामने से, दोनों साइड के टिकट काटना चालू किया। आदमी दोनों साइड इकट्ठा हो गया और साथ में सब पुल पर खड़े रह गए। तो आप उनको जिम्मेदार ठहराते जो पुल, जो कॉन्ट्रैक्ट रखा? तो कंपनी वालों को जिम्मेदार ठहराते हैं? कॉन्ट्रैक्टर जो है म्यूनिसिपैलिटी वालों को, सिक्योरिटी वालों को? सिक्योरिटी वालों को जो कॉन्ट्रैक्ट रखा उसकी गलती है ना। एक साथ को आदमी इतना जाने दिया, दोनों साइड टिकट काटने लगा। આજે શું કહેશો તમે? સરકારને શું કહેશો? ગાંધીનગર में भी सरकार है, यहाँ मोरबी में है, क्या कहोगे उनको आप? हम क्या कहेंगे, हमारा तो सब कुछ चला गया, हम क्या करेंगे? वो 4-4 लाख दे दिया, बस खत्म सरकार। 4 लाख दिया है? 4 लाख और 2 लाख એટલે 6 लाख मिला। हमारा तो सब कुछ चला गया ना।
पिताजी महेश भाई वो गिरीश का वो बड़ा लड़का है ना उसी का लड़का। કેટલો વર્ષનો હતો? कितने साल का? 12 साल का। 7मुं भणतो तो 12 साल 12 साल का। 12 साल का वो 10 साल का वो 4थी कक्षा में पढ़ता था। तो पिताजी दोनों को लेकर गए थे वहाँ? हाँ, हम तो यात्रा पर गए थे। आप यात्रा पर गए थे? वृंदावन से आगे निकला तब पता चला कि ऐसा वो फोन आया पुल टूटा है, पर ऐसा क्या मालूम कि अंदर गिर गए पुल में, वो सुबह मालूम पड़ा। आप कह रहे हैं कि आपको ये पैसा मिला, हाँ। और क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार और क्या कर सकती है? अब सरकार तो क्या करेगी, हमको तो छूट गई कि कॉन्ट्रैक्ट वाले को पकड़ो वो ही करेगा। पैसा શું કરું? પસાડે મેં આવી ગયા બસ મારા દીકરા જોઈ મારે पैसा लेके क्या મારા પૈસા ક્યાં કરું? चलेगा? પૈસા ક્યાં કરું? મારા દીકરા જોઈ મારે તમે ઇલેક્શનમાં વોટ આપશો? એ ચૂંટણી આવી છે, તમે જશો ઇલેક્શનમાં જશો વોટ આપવા? હું તો કાંઈ નથી જવાની કે નથી જવાના? નહીં જાઉં તમે જશો વોટ દેવા? વોટ દેવા નથી જવાનું? નથી જવાનું? તમે પણ નથી જવાનો? ના, આમાં કે વોટ કેવી રીતે અમારે? तो आप दोनों वोट नहीं? हाँ, वोट देने कहाँ जाएंगे? आया था मोदी जी, खाली आश्वासन आपे 2 मिनट खड़ा चला गया। चल गया मोदी आया था। पर प्रधानमंत्री भी क्या करे? प्रधानमंत्री क्या करेगा? नहीं, उनकी तो गलती नहीं है ना। उसका गलती नहीं है। क्या बनना चाहोगी? आईएएस। आईएएस? अरे वेरी गुड। सिविल सर्विस की एग्जाम दोगी? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कहे, आपको भगवान शक्ति दे। કેમ છો ટાઈગર? મજામાં તમે? તમારી ક્યાં ચાલ્યા તમે? કાંતિભાઈની રેલીમાં? Now, Morbi has been a BJP bastion for years. For example, all the 62 municipal councillors here are from the BJP. But in the 2017 election, the Congress won this seat against the backdrop of the Patidar agitation. The BJP, though, in the backdrop of the Morbi bridge tragedy, has switched its candidate. They've dropped the congressman who switched to the BJP and became a minister and gone back to their old war horse. Kantilal Amrithya, a 5-time MLA who's got a reputation of diving into the waters to rescue people during the Morbi bridge collapse, as a viral video showed. What makes Kantilal and the BJP tick? Let's find out. हमने आपका वीडियो देखा जहां आपने लोगों को बचाया जब मोरबी का हादसा हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको पहले तो क्रेडिट देना चाहिए कि आपने जो किया, તમે જે કીધું ત્યાં જઈને। મને ક્રેડિટ લેવાની જરૂર નથી, મારા ભેગા 150 જણા હતા, એને મારે આ ક્રેડિટ દેવાની છે। મારા ભેગા જે કામ કરવા માટે બધા હતા ત્યાં, એને ક્રેડિટ આપવાની। એક મને કહો, આ ચૂંટણી છે અને ચૂંટણીના પહેલા આવી મોટી ઘટના થાય છે, એનો કઈ અસર થશે ચૂંટણી ઉપર? કોઈ કુદરતી આફત આવી છે, હા, એની દેશના વડાપ્રધાન મોરબી કમિટી કરી નાખી છે। કમિટી કરીને એનું 100% સારી રીતે જેને ભૂલ કરી એનું રિઝલ્ટ આવશે। नहीं, जिम्मेदारी कोनी है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदार तो જે કમિટી કરી એ જવાબ દેશે ને એ નિર્ણય આવશે। BJP has invited me for some Puri Shak. I can't say no. The BJP doesn't always invite us in Delhi. But Morbi, ઊંધિયો છે. ઊંધિયો मिक्स शाक, मिक्स शाक, मिक्स वेजिटेबल, मिक्स्ड वेजिटेबल और पूरी पूरी। ઊંધિયો નથી बोलता તમે એને? ઊંધિયો बीजेपी प्रेम से खिला रहा है, मैं क्यों कहूँ? मैं गुजरात के मेहमान है, हमारी फर्ज बनती है। चलो, थैंक यू मैडम। हाँ हाँ हाँ, मस्त है ઊંધિયો। आपको टेस्ट चाहिए?
देखो मेरा अभी तक इतना बुढ़ापा नहीं आया चेयर का, आएगा। गुजराती हॉस्पिटैलिटी बीजेपी स्टाइल। नरेंद्र भाई તમે જો છો ને? From the BJP to the Congress headquarters. कैसे हो आप लोग सब? अरे आप लोग बिल्कुल मेरा इंतजार कर रहे हो? अरे पर वहाँ बीजेपी ऑफिस में तो बहुत भीड़ है। यहाँ रैली चल रही है कांग्रेस की। हम में मानते हैं, रैली में नहीं, हर घर जाएंगे। आप हर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर? डोर टू जो भारत। पर बीजेपी वाले बहुत बड़ा रैली कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग उनके सब आ रहे हैं यहाँ मोरबी में। किराए का आदमी नहीं है हमारे पास, किराए का आदमी नहीं रखते, वो किराए का आदमी के साथ बैठे हैं। हमारा कार्यक्रम डोर टू डोर चल रहा है, मोरबी की दुर्घटना की बात कर रहा है, सब बात करके डोर टू डोर जा रहे हैं। पर बीजेपी कह रही है ये दुर्घटना कोई इश्यू नहीं है इस इलेक्शन में, इस इलेक्शन में है विकास। विकास या मोरबी का कुछ भी नहीं। आप भी यहाँ निकले, रोड पर निकले, हाँ आप भी रोड पर निकले, रोड पर देखेंगे मोरबी में कुछ भी विकास नहीं है। पर इतने सालों से तो बीजेपी जीत रही। 2017 में आप जीते जब पाटीदार एजिटेशन था, अब हार्दिक पटेल भी चले गए बीजेपी में। इश्यू वो नहीं है। आज जो गुजरात के अंदर जो 2022 का जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं दोनों पार्टियां, आप देख लो गुजरात के अंदर या तो पूरे देश के अंदर, आप विकास के नाम पे एक तो ये जीरो है बीजेपी, दूसरी बात ये। अरे पर इतने सालों से जीत रही है। यही तो कह रहा हूँ आपको, तो उन्होंने 27 साल में जो गुजरात में उनको गुजरात वालों को दिया क्या? Interestingly, the Congress candidate here, Jayantiben Patel, has lost 6 times, but he is still contesting. He still believes he has a chance. 7वां बार लकी होंगे। दोरा जी जा रहे हैं, उसकी सभा चल रही है, मोदी जा रहे हैं। कोई आदमी नहीं, देखो। चलो, okay, all the best. Okay, thank you. Okay, now you can't come to this part of Gujarat and not have a good classic Gujarati thali, or to be more specific, a Saurashtra Kathiawadi thali, Thacker style. After all, the show is Elections on My Plate. Come with me. કેમ છો? મસ્ત. કઈ થાલી લો છો? ગુજરાતી કે પંજાબી? ગુજરાતી. હા, ગુજરાતમાં ગુજરાતી જ ના ખાવાનું. ચાલો, ગુડ. કેમ છો? તમારી થાલી બહુ ફેમસ છે? હા, કઈ કાઠિયાવાડી સૌરાષ્ટ્રવાળી થાલી? ગુજરાતી સૌરાષ્ટ્ર કાઠિયાવાડી. ચાલો મને થાલી આપો. શું મળશે થાળીમાં? હા, ઊંધિયો, મિક્સ વેજીટેબલ, બટાટા, પંચકઠોળ, ભીંડી, દાળ, ભાત, ફ્રૂટ સલાડ, પૂરણપોળી પણ મળે? અરે વાહ, પૂરણપોળી યુ ગેટ ઇન મહારાષ્ટ્ર ઓલ્સો, વેરી ગુડ. ગુલાબજામુન, કટલેસ. આટલી સ્વીટ તમારી છે? फ्रूट सैलेड, गुलाब जामुन, मोहन थाल, तुम लोग इतना स्वीट खा के क्या करते हो? इसीलिए तो मीठा है ना गुजरात, इसलिए गुजरात मीठा है। चलो, मीठे के नाम पे गुजराती थाली। आ जाओ टाइगर, क्या लाए हो? ओहो, you know what I love about a Gujarati thali is just how colorful it is. Beauty, mirchi. Woo! आप लोग मिर्च भी लगा देते हो, slightly spicy, काठियावाड़ी style. So in Kathiawar, they put a little bit more spice than the traditional Gujarati thali. थोड़ी मिर्ची तो मैं लूंगा. I love their chutneys, हरा chutney and the lal chutney, and lots of sweets from mohan thal to fruit salad. Then the sweet dal, of course. ઊંધિયો, mixed vegetables. આ શું છે તમારો? ગુડ, લવલી ગુડ. રોટલા છે કે નહીં? रोटली लाओ. हाँ 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 हाँ, घी लगा के रोटली. मेरा कैलोरी बहुत बढ़ने वाला है गुजरात में. तुम लोग बहुत कैलोरी बढ़ाता है. पर तुम्हारी ઊંધિયો, मिक्स वेजिटेबल, particularly in winter. Excellent. Sweet dal with a touch of groundnut, and of course buttermilk. જમજો, ગુજરાતમાં આવીને બરાબર જમજો, यानी eat well. When in Gujarat, you do as the Gujaratis do. I was born in Ahmedabad, so I'm born with a sweet Gujarati tooth. Forget about the calories, enjoy.
जामनगर में खाने के लिए क्या फेमस है? अभी हमारे जुआ काका फॉर्म में। You're watching Elections on My Plate, and we've traveled now from Morbi to Jamnagar, another BJP bastion fortress here in Saurashtra. But this time the BJP wants to give their campaign an extra buzz. So they put up a celebrity candidate, dropping a sitting minister and choosing the wife of cricketer and Jamnagar son number 1, they call him, Ravindra Jadeja's wife. Ribaba Jadeja is contesting for the first time. How is a cricketer's wife preparing for the political pitch? Let's find out. Come with me. जामनगर पर्टिकुलरली कैसा लगा? आपका शहर है, रविंद्र जी का शहर है। ये बताइए मैम कि व्हाट मेड यू डू दिस? ये इतना बड़ा डिसीजन आप लेते हैं और पॉलिटिक्स में आ जाती है। ये तो अलग पिच है, एक तो है क्रिकेट पिच, आप तो पॉलिटिकल पिच पे हैं। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म वेलकम टू जामनगर। थैंक यू। एंड डेफिनेटली 2018 से उससे पहले बात करते हैं, बिफोर शादी एंड ऑल। तो पहले से ही एक माइंड मेकअप था कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में जाना था, कहीं ना कहीं देशभक्ति के लिए इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना था। बाप रे, IAF जाना था? जी डेफिनेटली। आई वॉज एन एस्पिरेंट फॉर सिविल सर्विसेज। मैं 2.5-3 साल तक दिल्ली में थी। देन आई अपियर्ड फॉर इंडियन एयरफोर्स एज वेल। बट समहाउ डेस्टिनी कह लीजिए, नसीब कह लीजिए कि जामनगर की जनता की सेवा का मौका मिलने वाला होगा। एट दैट टाइम आई गॉट मैरिड और उसके बाद से थोड़ा बहुत ट्रैक चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं अंदर से एक जो खटक होता है ना कि ये करना था कुछ और, आ गए कहीं और, तो ये वाला जो कंफ्यूजन था उससे हस्बैंड ने पुश किया बेसिकली। मैं तो बोलती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली जो हमारा मेल डोमिनेटिंग है उनका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो माय हस्बैंड पुश मी, देन वी मेट अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उस टाइम उनके विचार, उनकी प्रेरणा, उनका जो एक स्वभाव और व्यक्तित्व, वो मुझे बहुत ही पर्टिकुलरली मुझे बहुत ही भा गया, मैं प्रेरित हुई। देन आई ज्वाइन बीजेपी। बट इंटरेस्टिंग यू आर टेलिंग मी कि रवि जडेजा पुश्ड यू इनटू पॉलिटिक्स। वो खुद नहीं, हाँ, आपको कुछ करना है तो आप करें। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बनूंगा MLA, मैं बनूंगा MP। नहीं, वो नहीं बनना चाहते। वो हैप्पी है T20 खेलना, विकेट्स लेना, रन्स करना, राइट। कहीं ना कहीं एक बार मोदी जी और अमित शाह तय करें कि रविबा को टिकट देना है तो उसके बाद और कोई कुछ होता नहीं, राइट। तो सब मान जाते हैं। सब नहीं, भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करती है और उनके साथ मिलके, उनकी विचारधाराओं के साथ संयुक्त रह के जब सेंट्रल जो नेतृत्व डिसाइड करता है उसी के साथ सब फ्लो में चलते हैं। आपको ये डर नहीं लगता कि इस पिच में क्या होगा, कोई टर्निंग बॉल आ जाएगा? दूसरी तरफ से बड़े कैंडिडेट आ रहे हैं, कांग्रेस से है, आम आदमी पार्टी। नो फियर, डर नहीं है? यू हैव नो फियर? सर, आप किसी के चेहरे पे देख सकते हैं डर की एक लकीर। डर नहीं है, आप गारंटी? आप कह रही है आपको पूरा विश्वास है कि आप चुनाव जीत सकती है, लेकिन अगर आप बने यहाँ से विधायक बने तो क्या करेगी, क्या फर्क होगा? क्या सबसे बड़ी पहली आपकी प्राथमिकता क्या होगी? जी डेफिनेटली सबसे बड़ी बात यह है कि 78 नॉर्थ जामनगर से मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। तब बेसिकली मैं एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आपको नहीं बता सकती। मैं एक ही बात कहूंगी जो मैंने हर जगह पर बोली है कि जामनगर हमारा महानगर की कैटेगरी में आता है। तो उस महानगर को हमें साथ में लेके कैसे स्मार्ट सिटी के तौर पे कन्वर्ट करना है, यही हमारी मुख्य प्राइमरी जो है हमारी एक विचारधारा रहेगी। प्राइमरी हमारा एक जो फोकस रहेगा, सेंटर पॉइंट रहेगा, तो ये उसी मुद्दे पे टिकता है। यहाँ महिलाएं बहुत है, कभी कभी कहा जाता है ज्यादा महिलाएं गुजरात की राजनीति में नहीं है। क्या ये सही है कि आप चाहती हैं कि एक महिला बने? हाँ, नहीं पर आप नहीं पर आप लोग ये पुरुषों को चैलेंज दे सकेंगे क्या? एक हमारी 100 के बराबर है। अच्छा, झांसी की रानी, हम उसे अम्मा बुलाते हैं। आप एक रेस्टोरेंट भी चलाती थी, वो रेस्टोरेंट का क्या हुआ? वो मेरे सिस्टर इन लॉ चलाते हैं। वो सिस्टर इन लॉ। ये भी कहा जाता है कि रविंदर की सिस्टर जो है वो कांग्रेस से है। सीधा पूछ लेते हैं, मैं बता देती हूँ। हाँ नहीं, रविंदर जी की सिस्टर जो है वो कांग्रेस की सपोर्टर है। तो फैमिली में एक साथ कांग्रेस, एक साथ बीजेपी। यस, उसमें हमारी 5 उंगलियां भी एक समान नहीं है, अलग विचारधारा है, अलग
पार्टी के तौर पे वो चलना चाहती है तो उनको लिबर्टी है। मेरे घर में सबको लिबर्टी है कि आप किसी पार्टी पक्ष के साथ जाना चाहती है तो दे आर फुली लेट कि आप जाइए। किसी ने मुझे कहा क्रिकेट मैच से मोर डिफिकल्ट पॉलिटिक्स है। सर वो उनकी परसेप्शन है, लेकिन मैं कहूंगी कि ये बहुत ही अच्छा फील्ड है, लोगों की सेवा करने का आपको अवसर मिलता है। और खास करके मैं इसलिए ज्यादा खुश हूँ कि मुझे ऐसे नेतृत्व में सेवा करने का अवसर मिल रहा है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। चलिए, ओके। ઈશુદાનભાઈ આપણી વચ્ચે આવી રહ્યા છે, બધા જ પોતાની ઘોષણા ચાલુ કરો। Okay, Rivaba Jadeja is not the only celebrity candidate contesting from this part of Saurashtra. The Aam Aadmi Party's chief ministerial candidate is a celebrity TV anchor who switched to Netagiri. Isudan Gadvi is contesting from here in Kambalia in the neighboring Dwarka Devbhumi district. There's a huge question mark over the role the AAP will play in this election. They are the X factor. Can they actually be a serious contender in this election, or simply, as their rivals call them, a vote cutter? Let's go and meet Isudan Gadvi, the face of the Aam Aadmi Party. ગુજરાતની જનતાનો બુલંદ અવાજ અને આમ આદમી પાર્ટીના મુખ્યમંત્રી પદના ઉમેદવાર એવા માનનીય શ્રી ઈશુદાનભાઈ નમસ્કાર। अरे કેમ છો? एकदम मजामा। इतनी भीड़ देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप टीवी एंकर बन के आप पूरी तरह से नेता बन गए हैं। लोगों का प्रेम है, जनता का प्रेम, और जनता का प्रेम बहुत बड़ा होता है। आपने देखा होगा जिस तरह से लोग एक उम्मीद देखते हैं अरविंद केजरीवाल जी पर, और मुझे लगता है कि इस बार इतना बहुत परिवर्तन आने वाला है कि आपने भी खुद ने देखा होगा लोग कितने बेबी से इंतजार कर रहे हैं, और हर जगह पे ये हो रहा है। क्योंकि अब तक गुजरात की राजनीति दो पक्षों की थी, बीजेपी और कांग्रेस। क्या वाकई आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी बदल सकती है? क्योंकि कांग्रेस कहती है आप बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी कहती है ये वोट कटुआ पार्टी है, ये आगे नहीं जा पाएगी। असलियत आप किस तरह से देखते हैं? देखो, कांग्रेस पिक्चर में नहीं है, कोई सीरियस पिक्चर में नहीं है, कोई सीरियस नहीं लेता है, आप भी मत लीजिए। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी तो 27 साल से गुमराह कर तो बैठती थी, लेकिन इस बार उनको नानी याद आ जाएगी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को नानी याद आ जाएगी, लेकिन बीजेपी की 25 साल से यहाँ पकड़ है, और डबल इंजन की बात करती है बीजेपी। मोदी जी दिल्ली में, भूपेंद्र भाई गांधीनगर में। किस तरह से देखते हैं? क्या एक मोदी जी का जो क्रेज एक था, क्या आप मानते हैं वो आपके लिए सबसे बड़ी, एक तरह से वो सबसे बड़ा इश्यू एक गुजरात का है? देखो, 25 साल से ये लोग गुजरात को लूट रहे हैं ना, 27 साल से, इसलिए तो जनता उससे पीड़ित है। दूसरी बात, डबल इंजन दोनों फेल है, दोनों इंजन फेल है। आपने देखा होगा यहाँ, देखो नरेंद्र भाई दिल्ली में, यहाँ तो मुख्यमंत्री बनने तो आने वाले नहीं है, और यहाँ इन्होंने कबाड़ा कर दिया है। नरेंद्र भाई की इज्जत नहीं बचती है यहाँ पे गुजरात में। मैं तो चाह रहा हूँ नरेंद्र भाई को कि नरेंद्र भाई आप प्रधानमंत्री है, यहाँ गुजरात मैं आ जाऊंगा, एक पेपर लीक नहीं होने दूंगा और आपकी इज्जत बचा लूंगा। बीजेपी कह रही है ये रेवड़ी की सरकार बनेगी अगर आम आदमी आए, की पार्टी की सरकार आती है। 300 यूनिट फ्री आप पावर दे रहे हैं, महिलाओं को कह रहे हैं हम आपको 1000 रुपए देंगे, युवाओं को कह रहे हैं हम आपको 3000 देंगे। तो उनका कहना है ये सब रेवड़ी है, फ्री की कल्चर में ऐसा नहीं चलेगा, सरकार आपको शासन अच्छा देना है, जो उनका कहना है बीजेपी देती है। सदीप भाई, आपकी सैलरी अच्छी है, आप तो घर चला रहे हैं। मेरी सैलरी अच्छी थी, मैं भी मेरा बच्चों को पढ़ा सकता था। हिंदुस्तान में गरीब पैदा होता है तो क्या उसका हक नहीं बनता है इस देश में? आपने 8 साल में 11.5 लोग फूंक दिए बड़े उद्योगपति, क्या उनको जरूरत थी? आपने क्यों माफ किया? माफ क्यों किया 11.5 लाख करोड़? और 11.5 लाख करोड़ आप उनके माफ करते हैं तो फ्री की रेवड़ी नहीं है। सीआर पाटिल जी 3000 4000 यूनिट फ्री लेते तो वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। सब हेलीकॉप्टर फ्री लेते तो वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। लेकिन एक जनता को हम 300 यूनिट बिजली क्या फ्री देते, वो फ्री की रेवड़ी है। मुझे लगता है कि जनता का अपमान है। मैं छोटा टीवी एंकर हूं, आप भी टीवी एंकर हैं। टीवी डिबेट करना आसान होता है, लोगों को भिड़ाना टीवी स्टूडियो में आसान होता है, जनता को लुभाना बहुत मुश्किल है। ईसुदन भाई,
ये तो आप मानते हैं, टीवी एंकर तो सेलिब्रिटी है आप, लेकिन जनता को कैसे लुभाएंगे, वो बहुत बड़ी चुनौती है। बीजेपी पूरी कारपेट बॉम्बिंग करने वाली है, उनके सभी मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब आने वाले हैं यहाँ इसी एरिया में। राजदीप भाई, जनता को लुभाना नहीं है, जनता के दिलों में हो। और यहाँ गुजरात में मुझे एक शब्द बोला जाता है, बीजेपी के जितने मंत्री उतार दें, गुजरात के लिए टाइगर अभी जिंदा है। Okay, we've had a very long day crisscrossing this part of Saurashtra, but the good news is always in India is whatever the time be, there's always space for some nice street food, night delights. And if you're in Jamnagar where I've returned, I'm told there are some specialities I must try. ये क्या है तुम्हारा स्पेशलिटी बताओ, क्या है? जामनगरी कावा है। जामनगरी कावा? अरे मैंने तो कश्मीरी कावा खाया है। जामनगरी कावा है। जामनगरी कावा विंटर स्पेशल कावो, सोडा में आता है। ये सोडा में आता है। और आपका? आपका यहाँ जामनगरी कावा है। मेरी खांसी है, सर्दी खांसी के लिए बेटर टॉनिक है। टॉनिक है? क्या बनाते हो? ओहो, अच्छा, वेरी गुड, वाओ। जामनगरी कावो, जामनगरी कावो, जामनगरी कावो, just what I need late night for my throat. हाँ, अच्छा बना है, well done, well done। जीरा का अच्छा फ्लेवर है, जिंजर जीरा। मेरा सर्दी खांसी के लिए बेटर टॉनिक है। हाँ, इसलिए तुम्हारे नेता इतना जोर से बोल सकते हैं गुजरात में, है? कावो का ये है, खुल गया, आवाज खुल गया। गुजरात का शेर, मुंबई का टाइगर, जान लीजिए, हम भी टाइगर है। चलो, बट आफ्टर दिस आई हैव गॉट अनदर थिंग टू हैव, बिकॉज यू कांट कम टू जामनगर एंड नॉट हैव द जामनगरी पान। कम विथ मी। जामनगर में पान में क्या खासियत है? बहुत अच्छा बनाते हैं ये। वो तो वहाँ भी बनारस में भी बनाते हैं। ऐसा नहीं बनता है। ऐसा नहीं बनता है? क्या है खासियत? हमारे जामनगर का पान तो विदेशों में जाता है, प्लेन में। विदेशों में प्लेन में आप बेचते हो? पान वाले पान है, ये देविका है, सौराष्ट्र में देविका पान है ना, ये पूरा फेमस है। यहाँ से जो ये जामनगर राजकोट हाईवे रूट पे जाने वाला कोई भी आदमी यहाँ से पान खाए बगैर नहीं जा सकता है। मीठा पान या सादा पान? मीठा पान खाइए, बढ़िया रहेगा। मीठा पान खाइए, बढ़िया रहेगा। तो अगली बार अगर मोदी जी को मिलूं, मैं उनको पूछूंगा पान बेटर कहाँ मिलता है, बनारस में या जामनगर में? नहीं, वो जवाब कैसे देंगे कि अगर चुनाव गुजरात में है तो गुजरात का बेटर रहेगा, अगर वहाँ का है तो वहाँ का बेटर रहेगा। अरे वाह, वेरी गुड। मोदी जी सुन रहे हो ना? खाई के पान बनारस वाला या जामनगरी वाला? जामनगरी वाला। जामनगरी वाला बेटर। मेरे को आपका फिर मीठा पान खिला दो। ऊपर लविंग मार दे, जो लविंग मार दे, लविंग मार दो। अरे वाह, मस्त है, मस्त है, टू गुड। ओके, एज आई एंजॉय माई पान जामनगर वाला, let me tell you that wherever you go, the fact is Mr. Modi is larger than life in these parts. Is the Modi factor enough for the BJP to sweep Saurashtra this time? We'll wait and see. For now, all I can say is, if you come to Jamnagar, don't miss the pan. There are some things about this country that are truly cutting across party lines. Pan is one of them. From the entire team on Elections on My Plate, thanks for watching. Khaike Pan, Jamnagar wala. Khul jaye band akal ka tala. Bye. Take care.